Hello everyone, welcome back to my channel .NET Decoded. So as our last video question was related to the scenario, like you have an API that is triggered by a button click and the processing time takes approximately 1 hour to complete. If 100 users triggers the same API concurrently, how would you design a system to handle scalability, performance, reliability? So last video में बस मैंने question पूछा था. Now let's see how you can answer this question. So this is an sample answer basically. You can answer this question in multiple ways. Like आपका जो thinking है, you can put it forward in a structured way so that interviewer को भी idea आएगा कि how you actually think about developing or designing a system. So the first step is user clicks on the button and API gets called. What we can do, API can create a job ID and return to not to accepted with a job ID so that the request is pushed to the message queue and background worker process can process your job asynchronously. So in order to फिर आगे क्वेश्चन आएगा कि डुप्लीकेसी नहीं होगी क्या, तो आपको आंसर करना है to prevent duplicate request from checking. If to avoid duplicate requests, we can, how we can avoid, we can check if job is already running for that user, and if that job is already running for the user, we will not allow it to basically put an like submit button again, use the submit button again. So we will disable the button and enable when the job is completed or failed. So in this way you can design a system which will handle 100 concurrent users at the same time without causing delay or performance issues and so on. So this is the way you can answer this question. So next question was look like the famous .NET question. What is dependency injection? And the interviewer asked me what do you think, like why it is actually required? So you can answer like dependency injection is a design pattern actually, where objects receives its dependencies from external source rather than classes creating themselves. तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. देखो क्या होता है, मोस्ट ऑफ कोड में अगर मान लो आपके पास एक कंट्रोलर है एंड दैट कंट्रोलर नीड अ रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट, तो नॉर्मल फ्लो में हम क्या करते हैं, उस रिपोजिटरी का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने कंट्रोलर में एंड देन वी कैन एक्सेस. बट इंजेक्शन में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट यू पास द रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट एज अ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर. तो उसमें हम कंस्ट्रक्टर में उसको इनिशियलाइज भी करते हैं. तो बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन वेयर whatever dependency is required by the class are basically provided by the external source rather than classes creating them itself. तो this is an example जो आप दे सकते हो, मैंने भी दिया था actually, जिससे उनको पता चलता है कि you actually know it, not just concept but the implementation part of it. ठीक है. then why it is required, because it supports loose coupling. क्या होता है, जब भी आप dependency injection करते हो you can switch, like change the implementation without affecting the like which interface it is calling. So basically आप उसका implementation change करते हो, then it will not impact. So basically all the system is designed in a loose coupling way. It is easy to test क्योंकि आप dependencies को mock कर सकते हो, stop कर सकते हो for unit testing, better maintainability. Basically changes in dependency affect fewer components, इसलिए better maintain भी होता है कोड. flexible है क्योंकि जैसे मैंने बताया we can swap implementation. बेसिकली जो कंज्यूमिंग क्लास है उसमें जाके कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. जो भी implementation है behind that particular repository or service, we just need to change it. And basically it supports solid principle. What is solid principle? मैं वो उसका भी क्वेश्चन आएगा आगे. So basically it is used in solid principle. It supports solid principle. So in this way you can answer this question so that interviewer को भी पता चलता है कि why dependency injection is required. Yeah, so next question was, do you know about solid principles and what does L stands for it? So they asked me about the same. So what is solid? Basically, it is a five design principles that help you build maintainable, flexible, and scalable software. Okay. So each letter basically stands for a responsibility. So S stands for single responsibility principle. What does this mean? A class should have only one reason to change. मतलब क्या है?
when we write a class or we design a class should have only a single responsibility. मतलब बहुत सारी लॉजिक या फिर बहुत सारी फंक्शनलिटी हमें एक साथ क्लब नहीं करनी है. ईच क्लास शुड हैव अ डेडिकेटेड फंक्शनलिटी और डेडिकेटेड रीजन टू चेंज. इससे हम वी कैन मेंटेन सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Then next was open close principle. So basically O stands for open closed. And what does this mean is your entity should be open for extension but closed for modification. मतलब let's say you have a class, okay, and you can add additional like functions functionality into your class, but you should not change the existing functions. So your class should be open for extension. You can add additional functionality, features, and so on, but you should not modify or the existing ones. So it should be closed for modification. Okay. Next is L, which they ask me explicitly, like Liskov substitute principle. So what does this mean? Basically, subclasses must be substitutable for their base class without breaking the behavior. इसका मतलब क्या है? मैं simple language में अगर बताऊँ ना आपको, तो क्या होता है when you have a base class and a derived class, okay? So जहाँ पे भी आप अभी आपका बेस क्लास यूज कर रहे हो वहां पे भी आपको डिराइव्ड क्लास यूज करने आना चाहिए. दिस इज व्हाट लिस्कव सब्स्टिट्यूट प्रिंसिपल मींस. मतलब अगर मान लो आपके पास एक कार है क्लास है और आपके पास एक मान लो हुंडई ऐसा कोई डिराइव्ड क्लास है, ठीक है. तो जहाँ पे भी अभी आप कार क्लास यूज करें, अगर आपने उसको रिप्लेस करके हुंडई क्लास भी यूज किया, तो भी आपका जो क्लास है वो बेसिकली ओवरऑल फंक्शनलिटी शुड वर्क एज एक्सपेक्टेड. दिस मीन्स योर सब क्लास शुड बी रिप्लेसेबल विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सुपर क्लास विदाउट अफेक्टिंग द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, इस तरीके से यू कैन आंसर. नेक्स्ट इज आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल. क्या होता है? बेसिकली आपको पता है कि व्हेन वी इम्प्लीमेंट एनी इंटरफेस इट फोर्सेस अस टू गिव इम्प्लीमेंटेशन. तो अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया देन इट विल थ्रो मल्टीपल एरर्स, और आपको उसको जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन देते नहीं हो देन तब तक उसमें एरर्स आते हैं. तो उसका क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है कि यू नीड टू राइट इंटरफेसेस लाइक विथ स्मॉलर फंक्शनलिटी, डेडिकेटेड फंक्शनलिटी. बेसिकली जो भी आपके क्लास को रिक्वायर्ड है उतने ही मेथड्स आपके इंटरफेस में होने चाहिए. So you need to able to maintain the segregation between the interface. Okay, you should not force the class to implement the method which actually class is not using at all. Next, D stands for dependency inversion principle. So what does dependency inversion principle stands for? Basically, higher level models should not be dependent on lower modules. Both should be dependent on abstraction. Definition तो हमने पढ़ ली, but what does this actually mean is, let's take an example. You have a controller, okay? So from your controller you are calling a repository object, okay? And the repository basically you're calling an interface, and interface has a implementation which is getting called. तो अगर आपने कंट्रोलर में कुछ भी बेसिकली आप जब इंटरफेस को कॉल दे रहे हो, सो यू आर डिपेंडिंग ऑन द अब्स्ट्रैक्शन पार्ट. आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन को कॉल नहीं दे रहे हो. आप बाद में जाके इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग द कंस्ट्रक्टर. मतलब कंस्ट्रक्टर में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. दिस इज व्हाट डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल मीन्स. Your like constructor should not depend on the abstraction, basically implementation. It should be dependent on your interface, which is your abstraction. Okay, so this is what dependency injection means. So yeah, next question was, have you used design patterns in your project, and if yes, then could you please explain? ठीक है, तो डिजाइन पैटर्न्स क्या होता है? डिजाइन पैटर्न्स आर बेसिकली यूज टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आते हैं, एंड दिस मेक्स कोर मेंटेनेबल, स्केलेबल एंड टेस्टेबल. ठीक है, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में कौन से यूज किए थे? आई एक्सप्लेन दैट आई हैव यूज्ड रिपोजिटरी पैटर्न. रिपोजिटरी पैटर्न क्या करता है? सेग्रीगेशन प्रोवाइड करता है to your business logic and your data access. Then I explained that I have used singleton pattern जहाँ पे मैंने कैशिंग एंड लॉगिंग के लिए थ्रू आउट एप्लीकेशन एक सिंगल इंस्टेंस ही मेंटेन किया है टू प्रोवाइड अ ग्लोबल एक्सेस पॉइंट. Then I explained decorator pattern. Decorator pattern are basically used to add new behavior responsibilities for objects without modifying their structure. तो अगर मान लो I explained that we have legacy system
जहाँ पे लॉगिंग कैशिंग इम्प्लीमेंटेड नहीं था, तो we use decorator type of pattern where we have added this functionality dynamically. Then last I explained was adapter pattern. So it makes your incompatible interfaces work together. Like we can integrate a third party payment gateway with a different interface using an adapter. मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी कोई और इंटरफेसेस है, सो आपने अगर कोई नया गेटवे इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया है, तो यू कैन यूज अडाप्टर पैटर्न एंड मेक इट वर्क एज लाइक इट इज वर्किंग बिफोर. ठीक है. तो इस तरीके से यू कैन एक्सप्लेन द डिजाइन पैटर्न. देयर आर एडिशनल डिजाइन पैटर्न्स ऑल्सो, और आपके प्रोजेक्ट में जितने भी कैसे यूज हो रहे हैं उस हिसाब से यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट वाज हाउ यू आर डूइंग एक्सेप्शन हैंडलिंग इन योर कोड. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द लाइक कोर पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. क्योंकि आप प्रॉपरली एक्सेप्शन हैंडल नहीं करोगे, योर एप्लीकेशन विल क्रैश, और आप अगर प्रॉपरली नहीं करोगे तो आपको ट्रबल शूट भी नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली व्हाट वेंट रॉन्ग. तो इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग इज मस्ट, एंड हाउ यू आर डूइंग इज मैटर्स द मोस्ट. सिंपल वे क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए, यू कैन यूज ट्राई कैच. बट ट्राई कैच के बहुत डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि ट्राई कैच से कोड लेंदी होता है, मेंटेनेबल भी नहीं होता है, रीडेबल भी नहीं हो पाता है, एंड देयर आर चांसेस कि आप मिस कर दो तो एक्सेप्शन कैच नहीं होगा एंड एप्लीकेशन विल क्रैश. तो इस तरीके से उसके इश्यूज होते हैं. तो आई एक्सप्लेन दैट आई हैव यूज्ड कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग मिडलवेयर. सो बेसिकली हमने अपने एप्लीकेशन में एक कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग मिडलवेयर यूज किया है, विच क्या करता है एक्सेप्शन हैंडलिंग से, वो डिटेल्स एक्चुअली डेटाबेस में लॉक कर देता है और यूजर को एक कस्टम एरर मैसेज रिटर्न करता है. ठीक है. कैसे काम करता है बेसिकली अगर आप देखोगे, तो फर्स्ट इज इट एक्सेप्शन जब भी आता है एप्लीकेशन में, मिडलवेयर कैच करता है एक्सेप्शन को. ओके. देन लॉग्स द एक्सेप्शन इन एक्सेप्शन टेबल. एक्सेप्शन लॉग हमने एक टेबल बनाया अपने डेटाबेस में, जिसमें कॉलम्स क्या है, आईडी है, मैसेज है, स्टैक ट्रेस है, जो कि दिखाता है कि एग्जैक्टली कहाँ से एक्सेप्शन आया है, बेसिकली फंक्शन कॉल कैसे होते गए एंड हाउ इट ऑल लाइक फ्लो एक्सप्लेन करता है. देन व्हाट इज द इनर एक्सेप्शन, एग्जैक्टली क्या एक्सेप्शन है, कौन से पाथ से आया है, दिस विल हेल्प यू टू ट्रबल शूट द इशू. देन कहाँ से आया है, HTTP गेट पोस्ट कौन से मेथड से आया है, एंड कब आया था, बेसिकली डेट एंड टाइम स्टैम्प ऑफ एक्सेप्शन. ठीक है. देन वी कैन रिटर्न अ कस्टम एरर मैसेज टू द क्लाइंट. कैसे कस्टम, बेसिकली यूजर को कभी भी, एंड यूजर को एक्चुअल एरर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा सिस्टम यूजर फ्रेंडली भी नहीं होता है जब आप एक्चुअल एरर थ्रो करते हैं, क्योंकि यूजर को एरर नहीं समझेगा, दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट, बट वो सिस्टम पूरा ऐसे क्रैश डाउन दिखता है. तो द इजियर एंड बेस्ट पॉसिबल वे इज टू थ्रो एन कस्टम एरर मैसेज, जैसे समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर. इस तरीके से यू कैन लाइक give the custom error response, and application will continue without exposing sensitive details. तो आपके application ने कभी भी like sensitive details को expose नहीं करने चाहिए. तो you can do the exception handling in a way. Also .NET में inbuilt भी exception handling middleware होता है, that you can also use. तो मेरे project में custom middleware use किया था, तो I have explained in this way. आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज किया उस हिसाब से यू कैन लाइक एक्सप्लेन एंड फ्रेम योर आंसर. Yeah, so the next question was a simple question basically related to SQL Server, and they asked me if I can write a SQL query joining two tables, employee and employee details. Trust me, like आपको लगेगा कि इतना simple कौन पूछता है इंटरव्यू में, that too with the experience of 5 to 8 years. तो क्या होता है पता है, वो लोग पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, वो चेक करते हैं इफ यू आर एबल टू राइट द जॉइन क्वेरी और नॉट. अगर आपको जॉइन क्वेरी आ रही है, देन ओनली दे विल प्रोसीड विथ मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस. तो उन्होंने मुझे सिंपल बोला था कि वी हैव एम्प्लॉय डिटेल्स, कैन यू राइट अ क्वेरी. तो मैंने अपना स्क्रीन शेयर करके नोटपैड ओपन किया था, एंड देन देयर आई राइट लाइक कंसिडरिंग, उन्होंने कॉलम्स भी नहीं बताए थे, तो मैंने रैंडमली एम्प्लॉय डिटेल्स में जो भी कॉलम हम मोस्टली रखते हैं उस हिसाब से आई रोट अ सिक्वल क्वेरी. तो उन्होंने कहा था ओके ओके, मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही मतलब मैंने जो लिखा था वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा था. देन दे like basically interviewer said okay okay, then they moved to next question. So next question was like, suppose you have 10 tables. Actually they basically interviewer asked me to write the question also on notepad. So the question was, suppose you have 10 tables and each table contains millions of records, how you will write an SQL optimized query.
तो उन्होंने ये भी कहा था कि यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चंस यू वांट बिफोर यू राइट द क्वेरी। तो वो देखना चाहते कि इतनी इंफॉर्मेशन में आप लाइक सफिशिएंट है आपको क्वेरी लिखने के लिए, यू कैन आस्क बेसिकली एडिशनल क्वेश्चंस टू गेट द क्लैरिटी ऑन द सेम। तो उन्होंने मुझे वो फ्रीडम दिया था। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे लाइक व्हाट एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, आपको डेटा कैसे चाहिए, विच टेबल्स आर इन्वॉल्व एंड हाउ दे आर रिलेटेड बेसिकली। तो मैपिंग क्या होगा, वन टू वन होगा, वन टू मेनी होगा, देन कोई फिल्टर है क्या, डेट रेंज है क्या, उसके बाद फ्रीक्वेंसी की मतलब कितनी बार ये क्वेरी रन होगी, रियल टाइम है, एपीआई है, या फिर बेसिकली कोई रिपोर्ट आप पुल कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक यू कैन आस्क लाइक देयर आर एनी परफॉर्मेंस इशू ऑन स्पेसिफिक क्वेरीज, और रिस्पॉन्स टाइम क्या है, और एग्जिस्टिंग इसमें इंडेक्सेस है या नहीं। मैंने इतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछे थे, बट दीज आर जस्ट आई हैव एडेड एडिशनल फॉर योर रेफरेंस। बट मैंने पूछा था कि एग्जैक्ट आउटपुट क्या चाहिए, बेसिकली कितने टेबल्स तो आपने बताए हैं, बट हाउ दे आर रिलेटेड, मैपिंग क्या है उनका, कोई डेट रेंज कंसिडर हो रहा है, लाइक यू नीड ओनली डेटा ऑफ लास्ट 1 ईयर, तो हम अननेसेसरी डेटा प्रोसेस नहीं करेंगे, कंडीशंस क्या होगी, इंडेक्सेस है क्या, ये सब मैंने पूछा था। ठीक है, तो उसका आंसर कैसे है। सो बेसिकली वी विल रिटर्न ओनली द रिक्वायर्ड डेटा, अननेसेसरी डेटा सिलेक्ट स्टार, या फिर दो वी नीड 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर, स्टिल वी आर रिटर्निंग लाइक द 10 ईयर डेटा, ऐसा नहीं करेंगे। वी विल रिटर्न ओनली रिक्वायर्ड डेटा, वी विल यूज प्रॉपर फिल्टरिंग, जितने भी कंडीशन आप डेटा लेवल पे लगा सकते हो यू विल अप्लाई दोज कंडीशंस। उसके बाद वी कैन यूज इंडेक्स इफेक्टिवली, we need to optimize the joins, we need to avoid the functions on columns, and use proper sorting and pagination, and analyze and test। इस तरीके से you can basically write an optimized SQL query। इस तरीके से you can answer the question, आप उसमें कुछ additions भी कर सकते हो। तो basically यहाँ पे वो देखना चाहते हैं कि how you will understand। तो जब मैंने इतना आंसर किया था, the interviewer said कि I guess you are like near to 80% of the answer, but still I need 20% more। तो मैंने बेसिकली इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, बट वो 20% क्या था इवन आई डोंट नो। बट आपको अगर लगता है कुछ एडिशनल होना चाहिए पार्ट ऑफ दिस आंसर, तो प्लीज कमेंट डाउन। So the last question of my technical first interview was, suppose you have an 4 rectangle boxes and you want to color the last box red color, how to do it? So basically it is related to CSS, क्योंकि मैंने हम बोलते हैं HTML CSS are the basic skills। तो इसका मैंने एक्चुअली आंसर बस यही दिया था कि वी कैन यूज यन चाइल्ड प्रॉपर्टी, जहाँ पे वी कैन ऐड द कलर अकॉर्डिंगली। बट अब मैंने आपके लिए दो आंसर्स प्रिपेयर किए थे। फर्स्ट इज वी कैन यूज लास्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी। तो लास्ट चाइल्ड में क्या होता है, मान लो आपके पास ऐसे बॉक्सेस है, रेक्टेंगल्स है 4, और उसमें से अगर आपको लास्ट को रेड कलर देना है, तो व्हाट यू कैन डू, you can select box class and then we last child and then we can give background color। There is other way where you can use young child basically, and child से आप उसको background color दे सकते हो, both will color the last box only। okay, तो इस तरीके से you can answer। तो this was my last question in the interview, and then the interviewer asked me if I have any questions for him, which I asked one or two simple questions, and then the interview was over। okay, so that is it from like technical interview part। This next video will be on techno managerial round part 1। Basically, my techno manager round happened like almost for 1 hour, and बहुत सारे scenarios दिए थे to check how I will like behave in those scenarios। तो उस सब भी मैं separate video में आपको बताऊंगी। तो to watch that video also। So thank you guys for watching, and please subscribe to channel।